ठीक है. So I'll start with that. एक second. Now what all I'm sharing my screen. One second. Okay, good. Hope you can see my screen now. Okay. So now my question to you is what all locators have you understood till now? ID, name, yes or no? So we have understood ID, name, class name, link text. Am I correct? So we have understood till now these are locators. There's one more locator which is called as partial link text. There's one more locator called as partial link text. Now where is this? ये partial link text कहाँ पे आ जाता या काम आता है? Where is this partial link text useful? Let's consider, say I'm logging in this application, है ना? Like I'm logging in this application. ऐसा. और मे बी लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो साइन अप फॉर न्यू अकाउंट लॉस्ट ए पासवर्ड. हाँ, ठीक है. तो ऐसे समझो नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड लाइक मे बी लाइक बिकॉज ऑफ सम रीजन ये जो लिंक है, ये लिंक है ना, देयर इज अ पार्ट ऑफ लिंक व्हिच इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज not fixed as such. When I say not fixed means it changes. Like I just sign up for a new membership, sign up for a new membership account, sign up for a new admin account. I'm like, there can be many things depending on the type of portal you opened. Okay, example maybe. Okay, so then I'll have to click on this link considering only the partial link part. Yeah. So let's consider, as I said, sign up for a new is fixed enough and the other piece is not fixed. I'm like, it may change. It may change. So in that case, what will we do is, in that case, we will just pick sign up for a new, है ना? I'll just show it to you. है ना? उस केस में आप क्या करोगे? आप सिर्फ sign up for a new उठाओगे यहाँ पे, है ना? ऐसे. Hope you can understand. Okay, sorry. 1 second now. I'll show you again. There was. Hope you can see my screen now. Okay, so let's consider this sign up for a new account is a link, as you can see. But the problem, as I said you, is like what has happened is, like you always may not have this link. ऐसे समझो कोई पोर्टल है या कोई पेज है जहाँ पे आपको साइन अप फॉर न्यू रहेगा, बट आगे का जो टेक्स्ट रहेगा वो चेंज होता रहेगा. एग्जाम्पल, साइन अप फॉर अ न्यू मेंबरशिप, साइन अप फॉर अ न्यू एडमिन अकाउंट, साइन अप फॉर अ न्यू मेंबरशिप अकाउंट, ऐसे रहेगा. सो उस केस में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे समझो एग्जाम्पल, ये जो है मैं सिर्फ साइन अप फॉर अ न्यू कॉपी करता हूँ. I'll use this partial link only. So if I go back, I'll use something called as partial link text as a locator. बराबर? Partial link text as a locator, and this is the text which I'll be using, and this is the text I'll be using. So let me show you. Let's consider. Let's say we are over here, huh? So I comment this out. This will help me open the login page, which is the home page. For now, I don't use this all at all, huh? For now, just for some time. So I'll comment this. So as you can see, मैंने इसको commented. Okay. Now I'll come back over here. This will help me open up the browser. जैसे आपको मालूम है, this will help me open up the URL. अब मैं क्या बोलूँगा? I'll say driver dot find element by dot. This time I'll be using something called as partial link text. I'll be using partial link text. So this will be the partial link text, as you can see, and I'll say dot click. Hope you're clear. So what will happen with this is, with this I'll be able to
click on only this link, हाँ, sign up for new, ये वाली लिंक पे क्लिक करो. Let's test it, हाँ, एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग इसको. Always save the program before running. So it will go, open up the browser, open the URL. देखा sign up page. So as you can see, it is clicked on sign up link. ठीक है. आगे I'll also show you a code when how to go and validate this as well. वो भी हम देखेंगे. Say example, I need to validate कि I'm on this page with this title. So वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. So let me now show you. So see, I have a good question saying, अरे say example, I didn't ask you to like मैंने कोई ऐसा link लेने के लिए नहीं बोला जो which is not unique enough, हाँ? Good question. इतना see आपका जो क्वेश्चन था ना, समझ लो आपका क्वेश्चन जैसे एग्जांपल साइन अप फॉर अ न्यू मैंने जो लिया, सो आई देन नाउ कंसीडर दैट दिस टेक्स्ट इज यूनिक इनफ. समझा आपको? द टेक्स्ट व्हिच आई हैव यूज्ड इज यूनिक इनफ. ठीक है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इज यूनिक इनफ फॉर अस टू गो एंड आइडेंटिफाई द वेब एलिमेंट. सो पार्शियल लिंक टेक्स्ट में वो ध्यान देना आप. ठीक है. जैसे एग्जांपल लाइक जैसे कल हमने देखा था, मे बी लाइक वी हैव टू वेब एलिमेंट्स विद द सेम आईडी, मे बी यू नो मे हैव. सो इन दैट केस आई विल टेक वन मोर वेब एलिमेंट व्हिच विल मैच बोथ द कंडीशंस और लाइक द एंड हेल्प मी यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. वो भी मैं एक्सपाथ के साथ आपको दिखा दूंगा. ठीक है. सो नाउ लेट मी गेट ऑन टू द नेक्स्ट लोकेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपाथ. ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस नेम say? mention, it mentions something called as XML path. ये अपने को क्या बोल रहा है? XML path. Now what do you mean by XML path? What do you mean by XML path? है ना? ML means what? Markup type of language. जैसे HTML होता है अपने पास, है ना? XML है. So these are all markup type of languages. These are all. अरे यार आज क्या हो रहा है? So XPath means nothing but what? XML path. XPath means nothing but what? XML path. ठीक है. So when I said XML path, you know the name comes from where? ML. ML आपको मालूम है, ML is nothing but marker type of language. जैसे HTML हुआ, XML हुआ. तो these are all languages with more of like say example. What do we have in there is the tags. We have a parent tag, then we have tag inside tag and so on. जैसे example, if I look over here, ये पेज पे मैं अगर आके बोलता हूँ व्यू पेज सोर्स, है ना? तो ये देखो मेरे को पहले HTML दिखेगा, फिर हेड दिखेगा और एक बॉडी दिखेगा. टू मेजर चाइल्ड्स अंडर दिस HTML. बॉडी के अंदर देन वी हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके हम बाद में ध्यान देंगे. हम लाइक विल सी. जैसे एग्जांपल, कैन यू सी समथिंग कॉल्ड एज अ div, देन अ फॉर्म, देन अ फील्ड सेट, then a div, then a label and so on. तो ये पूरा hierarchy है. ये पूरा hierarchy है. Let's consider अभी जैसे example I want to get onto this field. हाँ, अभी आपके पास जो application install है उसमें थोड़ा sequence शायद change हो, हाँ, but don't worry, हाँ, don't worry. In fact, that will be a learning point for you. So say example, I'm looking for this. As you can see, this input. Can you see this? Username. Got it? So now if I have to traverse across these tags and need to reach this input, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? Say I enter from HTML, I'll get into body,
बॉडी से मैं ये देखो, ये पहला डिव है, ये दूसरा डिव है, ये तीसरा डिव है. होप यू कैन अंडरस्टैंड. द फर्स्ट डिव, द सेकंड डिव, द थर्ड डिव. मैं तीसरे डिव में जाऊंगा, फॉर्म में जाऊंगा, फील्ड सेट में जाऊंगा. फिर अभी मुझे ये वाला यूजर नेम चाहिए, तो मैं वापस div में जाऊंगा, यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर div में जाऊंगा. एंड आई गेट इनटू स्पैन, द फर्स्ट स्पैन. ओ नो, हाँ हाँ, क्योंकि ये लेबल है, we'll have to understand. हाँ, and then inside this span I'll have this input field. Hope you can understand. So I'll be traversing across this path to get onto this input field. वापस समझाता हूँ मैं आपको. HTML से जाएंगे हम लोग. I'll then take on not the first div, not the second div, मैं third div लूंगा, है ना. So I'll take HTML, then the third div, the form, the field set, and then the div again over here, and then the span and the input. ये पूरा मेरा hierarchy रहेगा, which will help me get onto this field. So this is called as ML. Like I'm traversing, I'm taking a path across the ML's markup language is nothing but the tags to reach onto this web element username. Hope you can understand. हाँ, अभी इसको मुझे अगर समझना है, इसको मुझे अगर समझना है, तो अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल, आई वाज लाइक ऑलवेज आई यूज्ड टू से यू कि भाई मैं इसको 1 सेकंड ओके. अभी और एक चीज है, देखो अभी मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ. आई विल शो यू अ बिग डिफरेंस नाउ. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट टू से. सी आई हैव टू ब्राउजर्स ओपन ओवर हियर. ठीक है, आई हैव टू ब्राउजर्स ओपन ओवर हियर. हाँ, अभी जैसे एग्जांपल दिस ब्राउजर, एज यू कैन सी, इस पे मैंने राइट क्लिक दिया. ओह गुड, ओके 1 सेकंड. there's a second browser as well. Okay, good. So let me restart one of the browsers. 1 minute, huh? Good. Can you see the difference? देखो मैं जब इसको, the one I restarted now manually, when I right click on it, can you see I have something called as inspect element, inspect in Firepath. Can you see? And the one over here, it does not have that inspect in Firepath. Now why? Let's understand. Huh? What was this Firepath? आपको मिलेगा क्या? नहीं, आपको नहीं मिलेगा. Don't worry. Don't worry. हाँ, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा Chrome is the older version, है ना. So, but I want to tell you very important thing is this browser is opened by Selenium and this I opened it manually. दिख रहा है आपको? So ये जो मैंने मैन्युअली सेलेनियम से ओपन किया, उसमें ये प्लगइन वगैरह नहीं है. एज यू कैन सी, देखा प्लगइन नहीं है. कैन यू सी? तो इसका एडवांटेज क्या होता है? द सेलेनियम, द ब्राउजर्स ओपन, दे बीइंग केप्ट एज लाइट एज पॉसिबल सो दैट इट डज नॉट हैम्पर द परफॉर्मेंस. समझा आपको? उसे परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होता. बट एज आई कम बैक ओवर हियर, ये जो मैन्युअली है मेरे पास, उसमें प्लगइन दिख रहा है ना. सो मैं अभी ये फायरपाथ यूज करने वाला हूँ. फायरपाथ, what does it help me is, it helps me get X path. It helps me get X path. It also helps me get CSS, as you can see over here. एक second. Oh yeah, as you can see, it also helps me get CSS, but I'm now more focusing on X path. ठीक है, तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले पाथ बताई थी, आपको याद है? HTML, body, div, then the second div. एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग इसको. Let me try to right click on it and again say inspect in Firepath. Very good. So अब HTML body, हाँ, अभी हम लोग इसको relate भी करते हैं. How do we relate? Let's understand with me again. जो मेरा ये वाला पेज है, इसको मैं सोर्स पेज ओपन करता हूँ. ध्यान से देखना. हाँ, देखो HTML, उसके बाद मैंने बोला बॉडी, क्योंकि हेड एंड बॉडी आर द चाइल्ड ऑफ HTML. मैं बॉडी ले रहा हूँ. बॉडी के बाद मेरे को ये डिव नहीं चाहिए, ये डिव नहीं चाहिए, ये डिव चाहिए. हाँ, so as you can see, 1 second. Huh? So over here, as you can see, I didn't want this div, but I want this div. As you can see, div of 2.
and then I have a form inside it. As I said you, div के अंदर मेरे को form चाहिए, form के अंदर field set चाहिए, form चाहिए, form के अंदर field set चाहिए, field के अंदर वापस div चाहिए, फिर से I want a div, and then inside that div I want a span, and then inside it I want the input field, है ना? On span and then input field. Hope you're very clear with this path. So this path I'll traverse only to come and find this यूजरनेम वेब एलिमेंट. ये पूरा पाथ मुझे ट्रेवर्स करके आऊंगा तो मुझे ये जाके वेब एलिमेंट मिलेगा. अभी आपको समझा इसको एक्सएमएल पाथ क्यों बोलते हैं, एक्स पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे पूरा एक्सएमएल ट्रेवर्स करके आना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए अक्रॉस दी टैग्स. होप यू क्लियर, है ना? एनी क्वेश्चंस फॉर मी ऑन दिस? इसमें कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? श्योर, नो क्वेश्चन? एक ही बंदे ने नहीं बोला अब तक. नो क्वेश्चन फॉर श्योर? या किसको कुछ क्वेश्चन है या वापस बताऊं मैं एक बार? भाई इफ यू आंसर आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है. सो सम ऑफ देम सेइंग प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ठीक है, some of them are saying that no problem, let me explain you. So let me go step by step. As I said, XML path is XPath is nothing but XML path. So XPath, why do we say it as XML path? Because to get onto an object we need to traverse across the tags. कोई भी object पे जाने के लिए मुझे tags के across मुझे traverse करना पड़ता है. Now this is what the traversing happens, as you can see, है ना? ठीक है, ओके. तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ी देर के आपको यही चीज मैं आपको क्रोम में भी दिखाता हूँ. यही चीज मैं आपको क्रोम में भी दिखाता हूँ. देखो ये मेरा क्रोम का ब्राउजर है, एज यू कैन सी. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ना एक प्लगइन डाउनलोड किया है. वो प्लगइन भी मैं आपको बताता हूँ एक मिनट में. लेट मी शो यू डायरेक्टली ओवर हियर. मैंने राइट क्लिक करके इसको फिर से इंस्पेक्ट बोला, एंड यहाँ पे इफ आई क्लिक ओवर हियर, कैन यू सी समथिंग कॉल्ड एज क्रोम पाथ. CrowPath is the plugin which I installed over here, add-on. So I'll click on CrowPath over here. अब देखो ये मुझे ना क्लियर, मुझे देखो रिलेटिव XPath दिखा रहा है. हाँ, थोड़ी देर देख लेना, इस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में लिए. बट फॉर नाउ the one we understood some time back is the absolute XPath. समझा? हमने जो थोड़ी देर पहले समझा वो absolute XPath था. मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ. देखो मैं रिलेट करके, हाँ ध्यान से देखना मेरे साथ. जैसे एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये पेज के अंदर ये बॉडी है, एज यू कैन सी. और बॉडी के अंदर एक डिव, दो डिव, थर्ड डिव है ना? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी शो यू. जैसे एग्जांपल आई विल से //html डालो तो भी चलेगा, html बिकॉज आई एम टेकिंग एब्सोल्यूट पाथ /body. समझा मेरे साथ? अभी दिख रहा है ये बॉडी हाईलाइट है, देखा आपको? Can you see body is getting highlighted over here? So this is the body. Now body के अंदर if I put div inside the body, if I come and put div, देखो div, हाँ ये ध्यान से देखना जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो जैसे मैंने div डाला, let me put say div of one example. एक सेकंड. ओके, सो div के अंदर आई नीड टू ट्रैवर्स अगेन वन मोर div. हाँ, जो HTML के अंदर बॉडी था, बॉडी के अंदर div था, एंड div के अंदर कैन यू सी देयर 3 divs है. देखो ग्रीन में, ये ब्लू में और ये ब्लू में. देखो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स मैच दिख रहे हैं. देयर 3 divs इनसाइड इट, है ना? तो अभी हमारा वाला जो div है वो सेकंड div है. देखो हमारा वाला जो हमको चाहिए वो सेकंड div है ना? ये दिख रहा है पूरा क्वारंटाइन में. ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, तीनों अपने अपनी जगह पे. देखा आपने, है ना? सो दिस इज div 1, दिस इज div 2, दिस इज div 3. क्वारंटाइन 1, क्वारंटाइन 2, क्वारंटाइन 3, जो भी, है ना? तो अभी ये पूरा div था, देखा आपको? देन इनसाइड दिस आई हैव
div. This represent all divs, when I'm not giving any number as such. ऐसे देखो all divs, div1, div2, div3. लेकिन हमारा वाला div2 है, तो इसलिए मैं जाके यहाँ पे div of 2 बोलूंगा ऐसे. देखो सिर्फ अकेला ये बच गया, ठीक है आपको? Only this is got. So अभी मेरे को अभी div of 2 मिल गया, लेकिन हमारा अभी div of 2 के अंदर हमको क्या चाहिए? I wanted a span. देखो ये वाला again span of 1 या वन सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गई ना. 0 मैचेस दिखा रहे हैं. तो div of 2 इज व्हाट वी रिक्वायर. वेरी गुड. div of 2 के अंदर देखो मैं क्या गलती किया. देखो मैंने यहां तक पहुंचा ना मैं div of 2 में, लेकिन उसके अंदर मेरे को फॉर्म चाहिए, फील्ड सेट चाहिए, है ना. तो मैं बोलूंगा स्लैश फॉर्म. देखो फिर भी गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है? देखो 1 element मैच. या आई हैव इट. वेरी गुड, बट इट्स नॉट विजिबल. स्लैश फील्ड सेट. वेरी गुड, इट्स गेटिंग हाईलाइटेड. होप यू कैन अंडरस्टैंड द वे आई एम ट्रैवर्सिंग. हाँ, अभी फील्ड सेट के अंदर अपने को क्या चाहिए? अगेन आई वांट समथिंग कॉल्ड एज अ div. नाउ दिस टाइम आई वांट दिस div. हाँ, पहले वाला दिस div, दिस टाइम दिस div. सो आई विल से div. वेरी गुड. ये देखो अभी ये सारे divs है. हाँ, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये सारे divs है. बट मेरे को कौन सा div चाहिए? div of 0, div of 1 चाहिए ना मेरे को. सो आई विल से div of 1. ओ div of 2, सॉरी. ओ 1 1 1 1 ऐसे क्यों? ठीक है. So I wanted div of 1, as you can see getting highlighted over here, है ना. But now inside this div I have a input field under this span, है ना. So I'll say span again. देखो आपको दो स्पैन हाईलाइट हुए हैं, ये स्पैन और ये स्पैन. देखो अलग अलग स्पैन है. मेरे को अभी ये अंदर वाला स्पैन चाहिए, तो I'll say span of 1. देख ले स्पैन ऑफ 1 क्या बोलता है. गॉट इट. तो मेरे लिए ये स्पैन इंपॉर्टेंट है. देखो ये वाला. अब ये स्पैन के अंदर वापस इनपुट फील्ड है मेरा वाला. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. हाँ, गुड. सो वी आर इनटू द इनपुट फील्ड. होप यू अंडरस्टूड. दिस इज द एब्सोल्यूट XPath फॉर मी, है ना. लेट्स डू इट. अंडरस्टैंड दिस नाउ. मैं इसको पहले पाथ को मैं नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट करता हूँ फॉर यू. इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट मेरे को रूट से लेकर एलिमेंट तक लेकर जाता है. देखो, हाँ, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट XPath. हाँ, मुझे कुछ तो, one second, am I missing anything? Huh? Let me do one thing. Let me try to highlight this and keep it over here. This is good. Okay, as you can see, huh? There's one more thing. Say over here, copy. As you can see, XPath. Yeah, full XPath. देखा आपको? Full XPath is what I'm interested in. See, this is what I'm interested in. Same है क्या? देखते चलो जो हमने अभी बनाया. हाँ, same ही है ना. देखो, can you see? Hope you can understand now. So let us understand this. So I traverse across HTML, not the head but the body. Inside this I have one div, and inside this I had more number of divs. Like I was interested in the second div, then the form, then the field set, and again first div, then again the span and the input field. So this way, this is called as absolute XPath. What is this called as? Absolute XPath. अब इसका advantage क्या है? As you can see, advantage, because there's one more XPath. I'm like, one more XPath means there are two types of ways in XPath I can go and find the object. The one is absolute and the second is relative. The first is absolute and second is relative. और आपके सामने जो दिख रहा है अभी ये absolute XPath है. ये जो सामने दिख रहा है कौन सा है? Absolute XPath है. तो अभी as you can see, इसका advantage is what compared to relative XPath is the speed, performance, like fast बनता है. But the disadvantage of this is, say example, कल
भाई कल कोई डेवलपर और मे बी बिकॉज ऑफ सम डिजाइन डेवलपर पुट्स इन वन div इन बिटवीन, समझो आपको। सी यहाँ पे हमारा div of 2 था, तो उसने और एक div बीच में डाल दिया, तो हमारा ये div of 2 div of 3 बन जाएगा। जैसे ही div of 2 div of 3 हो गया, हमारा पूरा XPath चलना बंद हो जाएगा, इट विल गो ऑन टॉस। तो हमको जाके उसको वापस जाके मेंटेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज विद एब्सोल्यूट XPath, एज यू कैन सी, है ना, एब्सोल्यूट XPath। गॉट इट? सो नाउ, सो यहाँ पे एज यू कैन सी, इसका जो XPath जो है एज ए शेड्यूल, इसका एडवांटेज आई शेड यू, डिसएडवांटेज आई शेड यू, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकेटर्स एज आई टोल्ड यू, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकेटर्स, है ना? सो नाउ ये वन ऑफ द लोकेटर्स, दैट मीन्स व्हाट? That means what? It's one of the locators. That means what? That means I'll be able to go and identify the object using the XPath. है ना? I'll be able to go and identify the object using XPath. है ना? है ना? जैसे हम ID से फाइंड करते हैं, जैसे हम नेम से फाइंड करते हैं, क्लास से फाइंड करते हैं, वैसे I can go and use the XPath. Hope you're clear with the concept of XPath for absolute. Any questions for me?